فوج نے غزہ پر رات کو بڑا فضائی حملہ کر دیا۔ المغازی کیمپ پر حملے میں 30 افراد شہید ہو گئے۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملے 5ویں ہفتے میں داخل ہو گئے ہیں۔ ہزاروں بے گھر فلسطینیوں کی پناہ گاہ بنے۔ اقوام متحدہ کے الفخور اسکول پر بھی بمباری کی گئی۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج نے حماس کے سربراہ اسرائیل ہنیا کے گھر پر بھی ڈرون حملہ کیا۔ 7 اکتوبر سے اب تک فلسطینی شہداء کی تعداد 9500 ہو گئی ہے، جبکہ 25,000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں اور ایندھن کی قلت سے غزہ کے 16 ہسپتالوں اور 32 طبی مراکز میں کام رک چکا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع یوب گلانٹ نے کہا کہ حماس چیف یحییٰ السنوار کا تلاش کر کے ختم کر دیں گے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے حماس بریگیڈیئر کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا مزید کہنا تھا کہ حماس کے مواصلاتی مرکز، بینکرز اور سرنگوں کے نیٹ ورکس کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے حماس کے 12 کمانڈرز کو مارنے کا بھی دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی فورسز نے غزہ شہر کا مکمل گھیراؤ کر رکھا ہے۔ دوسری جانب حماس نے بھی غزہ میں اسرائیلی فوج سے لڑائی کی ویڈیو جاری کر دی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ غزہ میں ابھی جنگ بندی کرنے سے حماس کو دوبارہ منظم ہونے میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ غزہ میں ابھی جنگ بندی کرنے سے حماس کو دوبارہ منظم ہونے اور حملے کرنے کا موقع مل جائے گا۔ شہریوں کے تحفظ، امداد اور غیر ملکیوں کے انخلاء کے لیے انسانی وقفہ کار آمد ہو سکتا ہے۔ اردن میں عرب ممالک کے وزراء خارجہ کے ساتھ گول میز کانفرنس میں شرکت کے بعد اینٹونی بلنکن کا کہنا تھا کہ غزہ میں امداد کا سلسلہ برقرار رکھنے کے طریقوں پر بات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ روزانہ رفح کراسنگ سے 100 امدادی ٹرک جا رہے ہیں، لیکن یہ ناکافی ہیں۔ سندھ کے 16 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی الیکشن کے لیے پولنگ کا سلسلہ جاری۔ پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک بلا تعطل جاری رہے گا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ 26 یونین کونسلز کی نشستوں پر 116 امیدوار آمنے سامنے ہیں۔ صوبے بھر میں 182 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ شہر قائد میں چیئرمین، وائس چیئرمین اور جنرل ممبر کی 9 نشستوں پر پولنگ کا عمل جاری ہے۔ بلوچستان کے ضلع کوئٹہ میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف آپریشن کیا گیا، جس میں مختلف علاقوں سے 620 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ پولیس کے مطابق سٹی ڈویژن سے 116، قائد آباد ڈویژن سے 62، صدر ڈویژن سے 323 اور سریاب ڈویژن سے 119 تارکین وطن گرفتار کیے گئے ہیں۔ کوئٹہ سے گرفتار ہونے والے تمام غیر ملکی تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کے لیے چمن روانہ کر دیا گیا ہے۔ سرائے کے مطابق پاک افغان سرحد چمن سے 477 خاندانوں کے 5246 افراد کو افغانستان بھیج دیا گیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی کی زیر صدارت ون ونڈو آپریشن سینٹر کے قیام کے حوالے سے خصوصی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں لاہور میں سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کے لیے ون روف ون سٹاپ سولوشن پر تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ فیڈ ملک، پیڈ ملک اور پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن ون ونڈو آپریشن سینٹر میں سروسز فراہم کریں گے۔ لوکل گورنمنٹ، ماحولیات، ہاؤسنگ اور دیگر محکموں کے بااختیار افسران ون ونڈو سینٹر میں موجود ہوں گے۔ لیسکو اور سوئی گیس کے کاؤنٹر بھی ون ونڈو سینٹر میں قائم کیے جائیں گے۔ پی آئی اے کا آپریشن مکمل طور پر بحال نہ ہو سکا۔ پی آئی اے ذرائع کے مطابق آج بھی مزید 14 پروازیں منسوخ ہوئی، جبکہ ایندھن بحران کے باعث 19 روز میں 788 پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ کراچی سے سکھر پی کے 536، پی کے 537 اور کراچی سے گوادر پی کے 503 اور پی کے 504، جبکہ کراچی سے دبئی پی کے 213 منسوخ ہوئی۔ اسی طرح مسقط سے کراچی پی کے 226، اسلام آباد سے سکھر پی کے 631 اور پی کے 632، جبکہ اسلام آباد سے کوئٹہ پی کے 325 اور پی کے 326 اور اسلام آباد سے دبئی پی کے 233 کی پروازیں اڑان نہ بھر سکی۔
कोयटा के सिविल अस्पताल के 5 डॉक्टरों समेत अमले के 8 अफराद कांगो वायरस का शिकार हो गए। 8 में से 7 अफराद को तशवीशनाक हालत में एयर एम्बुलेंस के जरिए कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा के सिविल अस्पताल, शेख सैद अस्पताल और फातिमा जिन्ना अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड कायम कर दिए गए हैं। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि मोहलिक कांगो वायरस जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होता है। वायरस मुतासरा शख्स के करीब रहने और छूने से दूसरों को मुंतकिल हो सकता है। WHO ने कहा कि दुनिया भर में कांगो वायरस से मुतासिर होने वालों में डॉक्टर्स और नर्सेस की बड़ी तादाद भी शामिल है। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि कांगो वायरस से इंतकाल करने वालों की तदफीन के लिए भी एहतियात की जरूरत है, क्योंकि मैयत को छूने से भी कांगो वायरस मुतासिर हो सकता है। और मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश रहने की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस्लामाबाद में मौसम खुश, जबकि मतला जज़वी अबर आलूद रहेगा। मगरबी बलोचिस्तान में मतला अबर आलूद और चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मंगला, सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, लाहौर, ओकाड़ा में धुंध छाई रहेगी। जंग, हानेवाल, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान में भी धुंध छाए रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज कलाम में दर्जा हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी जानिब शहर कायद में भी अगले 3 रोज तक शहर का मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की गई है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले खबर शामिल करें कसूर से, जहां पुलिस का जराइम के इंसदाद के लिए अहसन इक़दाम है। DPO ने मर्दों खवातीन पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल मुहाफिज फोर्स स्क्वाड तश्कील दे दिया है। 22 नई मोटरसाइकिल्स पर 44 पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। 10 तरबियत याफ्ता खवातीन एहलकार भी स्क्वाड में ड्यूटी सर अंजाम देंगी। मुहाफिज फोर्स के मर्दों खवातीन एहलकार जदीद असलहा और हिफाजी गैजेट से लेस होंगे। DPO तारिक अजीज सिंधु ने बताया कि मुहाफिज फोर्स के क्याम का मकसद शहरियों की जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाने के साथ साथ जराइम का तदारुक करना, क्रिमिनल्स पर खौफ तारी करना और शरीफ शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना है। पुलिस अवाम की जानो माल की हिफाजत की खातिर किसी कुर्बानी से दुरेक नहीं करेगी। मुहाफिज फोर्स ने शहर में भारी नफरी के साथ फ्लैग मार्च भी किया है, जो कि आप अपनी लाइव टेलीविजन स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं। नाज़रीन, खबर शामिल करें शांगला से, जहां वादी काना में नवाब अब्दुल हकीम खान और नवाब अब्दुल जलील खान मेमोरियल ट्रस्ट का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताई तकरीब में शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की है। मुनक्किदा तकरीब के मौके पर शुरका से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि नवाब अब्दुल हकीम मेमोरियल ट्रस्ट एक गैर सियासी फलाही तहरीक का नाम है। ये ट्रस्ट स्कूलों और अस्पतालों में सेहत और तालीम की बेहतरी के लिए काम करेगी। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। खान मेमोरियल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम जिला भर से नवाब अब्दुल हकीम खान के खानदान से ताल्लुक रखने वालों ने तारुफी इजलास की शक्ल में कसीर तादाद में शिरकत की। शुरका से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि नवाब अब्दुल हकीम खान ने अपने दौर में साम्राज्य अनासिर का कड़ा मुकाबला किया और अपने खानदानी तशख़्ख़ुस को बरकरार रखा। नवाब अब्दुल हकीम खान और उनके भाइयों की लाजवाल कुर्बानियों की दास्तान को जिंदा रखने और नई नस्ल में खुददारी और उसूली मौके पर हर हाल में डट कर रहने और नौजवानों में तालीम
اور ٹیکنالوجی کا شعور پیدا کرنے کی غرض سے اس ٹرسٹ کی بنیاد رکھی گئی۔ مقررین کا مزید کہنا تھا کہ نواب عبدالحکیم خان کے نام اور خدمات کو زندہ رکھنے کے لیے اسپتالوں میں نواب عبدالحکیم میموریل ٹرسٹ کے نام پر ایمبولینس سروس تشکیل دیں گے اور شانگلہ کے ذہین غریب طلباء کے لیے اعلیٰ تعلیم، ہنر اور اسکالرشپ کا بھی اہتمام کریں گے۔ کوئلہ کانوں میں معذور افراد اس ٹرسٹ کا فوکس رہیں گے۔ مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ نواب عبدالحکیم میموریل ٹرسٹ ایک غیر سیاسی فلاحی تحریک ہے۔ منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے مختلف تجاویز بھی پیش کیے، جس میں تعلیم، سیاحت اور رفع عامہ کی ترقی پر خصوصی ناظرین خبر شامل کریں کلام سے، جہاں قومی جرگہ شوروں کے رکن عوامی نیشنل پارٹی کلام کے صدر ملک عامر سید نے کہا کہ کلام اور اتروڑ کے درمیان جاری تنازع قومی جرگے سے حل کرنا ہماری بڑی کامیابی ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ کریں گے معطر علی۔ عوامی نیشنل پارٹی کالام کے صدر و کالام قوم جرگہ شورا کے رکن ملک عامر سید نے کہا ہے کہ کالام قوم اور اتروڑ قوم کے 130 سالہ درینہ مسائل موجودہ جرگے کے ذریعے حل ہونا ایک بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ یہ مسائل والی اصوات اپنے دور میں حل نہ کر سکے۔ پاکستان کی اعلیٰ عدالتیں ان مسائل کو حل نہ کر سکی اور موجودہ جرگے نے وہ کر دکھایا، جس پر عوام خوش ہیں، کیونکہ گزشتہ 130 سالوں سے ان مسائل کی وجہ سے بہت سا جانی و مالی نقصان بھی ہوا ہے۔ اب لوگوں میں شعور بیدار ہو چکا ہے کہ ان جنگ و جھگڑوں سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ کہا کہ کالام ایک ٹورسٹ اسپاٹ ہے جہاں جھگڑوں سے سیاحت پر منفی اثرات مرتب ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کی تاریخ دینا ایک خوشائن بات ہے۔ سوات کے جتنے بھی میگا پروجیکٹ ہیں وہ عوامی نیشنل پارٹی کے دور حکومت میں ہی شروع ہوئے تھے۔ ان میں کالام ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، بحرین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، مدین ہسپتال کا افتتاح، کالام روڈ کی تعمیر جیسے میگا پروجیکٹ شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سابق حکومت اور امیر مقام کے صرف پلوں کے ٹھیکوں کی وجہ سے آپس میں لڑتے رہے اور نقصان عوام کا ہوا اور وہ تمام پل ابھی تک تعمیر نہ ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ عوام جوک در جوک عوامی نیشنل پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں اور آنے والی ناصر خبر شامل کریں مردان سے، جہاں سی پی پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے ڈیری فارمنگ پر ایک روزہ آگاہی سیمینار کا باقاعدہ انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں کمپنی، جی ایم، ڈاکٹرز اور ڈیری فارمرز کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس حوالے سے رپورٹ کریں گے فیصل زادہ۔ مردان میں تھائی لینڈ کمپنی سی پی پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ نے ڈیری فارمر کے لیے ایک روزہ خصوصی سیمینار منعقد کیا۔ سیمینار کا مقصد خیبر پختونخوا اور خاص کر مردان کو اچھی کوالٹی کی گوشت اور دودھ کی کمی کو پورا کرنا اور فارمر کا اکنامک گروتھ کرنا تھا۔ بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور ہمارا فارمر جو ہے نا اس سے بہت موٹیویٹ ہوگا، اور حالات اس طرح ہے نا تو آج کل میرے ایریا میں کے پی کے میں دودھ کا بہت زیادہ جو پریشانی شروع ہے نا، تو انشاءاللہ اس کی وساطت سے انشاءاللہ حالات میں تھوڑا سا بہتری آئے گا۔ ڈیری فارمر محنت کے ساتھ اگر جانوروں کے اچھی کوالٹی کی خوراک پر توجہ دے تو پاکستان میں دودھ واپر مقدار میں دستیاب ہوگا۔ سیمینار ہے اسپیشلی کیٹل فیڈ کے لحاظ سے، تاکہ ہمارے ملک میں، ہمارے صوبے میں بھی جس طرح کے ہماری جو فوڈ کی ریکوائرمنٹس ہیں، دودھ کی ریکوائرمنٹس ہیں اور گوشت کی ریکوائرمنٹ ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے ہم ایک اویئرنیس پروگرام کا یہاں پہ انعقاد کر رہے ہیں، جس کے اندر ہمارا بیسک مقصد یہ ہے کہ فارمر کو کس طرح ہم گرو کر سکیں۔ اس موقع پر مقررین ناصرین خبر شامل کریں شہر قائد سے، جہاں رضویہ سوسائٹی پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش کو دھر لیا ہے۔ کارروائی کے دوران دوسرا ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں انوار احمد شیخ کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ رضویہ سوسائٹی پولیس کی خفیہ اطلاع پر کارروائی، منشیات فروشی میں ملوث ملزم گرفتار۔ مورخہ 3/11/2023 کو مقام گلی نمبر 7 قابل بازار فیروز آباد ناظم آباد نمبر 1 سے ایک ملزم کو گرفتار کیا گیا۔ دوران کارروائی دوسرا ساتھی تنگ گلیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گیا، جن کی تفصیل درجہ ذیل ہے۔ مقدمہ الزام نمبر 2023 460 باجرم دفعہ B319 جائے وقوع مقام گلی نمبر 7 قابل بازار ناظم آباد نمبر
एक इमाम मुलजिम मंसूर खान वल जकरिया खान, फरारी मुलजिम फिदा उर्फ के वल जकरिया खान, मुलजिम मंसूर से 530 ग्राम चर्स, मुलजिम फिदा उर्फ के से 530 ग्राम चर्स एक कर फरार हुआ। मुलजिम मंसूर का रिकॉर्ड मुकदमा इल्जाम नंबर 2023-322 बाजुर्म दफा 147, 148, 149, 324 ऑब्लिक 34 थाना रिजविया सोसाइटी, मुकदमा इल्जाम नंबर 2018 बाजुर्म दफा 6C9 थाना पापोश नगर, जबकि फरार मुलजिम फिदा उर्फ के खिलाफ थाना आजा में पहले भी मुतादिद मुकदमा। अफसोसनाक खबर शामिल करें। आपको बताएं कि मटियारी में ट्रैफिक हादसे में जख्मी होने वाला शख्स जख्मों की ताप ना लाते हुए दम तोड़ गया। मटियारी के सहाफी आदिल के चचा 35 साल यार मोहम्मद गुज़िश्ता रोज हैदराबाद बाईपास के मकाम पर ट्रैफिक हादसे में शदीद जख्मी हो गए थे, जिसको इंतहाई तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया था, जहां पर वो जख्मों की ताप ना लाते हुए दम तोड़ गया। नाज़रीन, पाकपतन में पुलिस की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें 8.5 करोड़ मालियत का माली मसरूका डाकुओं से बरामद करके मुद्दईयान के हवाले किया गया। DPO ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने बताया कि पुलिस ने 16 खतरनाक टिकट गैंग्स के 44 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया है। संगीन मुकदमात में मुलविस डाकुओं से 8.5 करोड़ मालियती माल मसरूका बरामद कर लिया गया। पुलिस ने डाकुओं से बरामद होने वाली 6 कारें, 7 रिक्शे और 72 मोटरसाइकिलें बरामद करके वर्सा के हवाले कर दी। पुलिस ने नाजायज असलहा रखने वाले 91 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 2 राइफलें, 83 पिस्टल और 6 बंदूकें भी बरामद की है। पाकपतन पुलिस ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ ऑपरेशन मजीद जारी रखने का अज़्म का इजहार किया है। SHO थाना पहाड़ियां वाली की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां जारी है। बदनाम ज़माना मुनशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार करके भारी मिकदार में चर्स बरामद कर ली गई। आपको अपडेट करते चले कि SHO थाना पहाड़ियां वाला की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं। बदनाम समाना मुनशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार करके भारी मिकदार में चर्स बरामद कर ली गई। DPO मंडी बहाउद्दीन सफदर रजा कासमी की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ खसूसी हिदायत और DSP सर्कल फालिया जियाउल्लाह खान की जेर निगरानी SHO थाना पहाड़ियां वाला चौधरी मोहम्मद आसिफ रांझा ने अपनी टीम के हमरा बदनाम समाना मुनशियात फरोश अरशद को रंगे हाथों गिरफ्तार करके उसके कब्जे से लाखों रुपए मालियत की 10 किलो 50 ग्राम चर्स बरामद करके उसे पाबंदे सलासल कर दिया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताया कि डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत इत्तलात पंजाब नवीद अस्मद ने कहा कि महकमे ज़राअत पंजाब के तहत सूबे में गंदम की काश्त के लिए 1 करोड़ 60 लाख एकड़ का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिससे इंशाअल्लाह 2 करोड़ 56 लाख टन पैदावार हासिल होगी। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फजल जावेद खान की इस खसूसी रिपोर्ट में। नवीद अस्मद कालू डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत इत्तलात पंजाब ने कहा कि इस वक्त गंदम की काश्त के लिए काश्तकार बीज खाद मशीनरी का बंदोबस्त कर रहे हैं, क्योंकि गंदम की काश्त का अमल जारी है। काश्तकारों को चाहिए वो गंदम की काश्त के लिए 20 नवंबर तक तर्जुमा मुकम्मल कर लें। ज़्यादा पैदावार के असूल को जड़ी बूटियों का बर वक्त तदारक करें। पानी का इस्तेमाल फसल के आम बराल में यकीनी बनाएं। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब नादिर चट्ठा की हिदायत पर गंदम की फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए तरक्कीदात किस्म का बीज खाद म्यारी ज़राई ज़हरों और दीगर मुदखल की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में फील्ड फार्मर्स को हिदायत जारी कर दी गई है कि ज़राई कारकुनों को काश्तकारों की फ़नी रहनुमाई के लिए फील्ड सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल है। नवीद अस्मद कालू डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत इत्तलात पंजाब ने कोहिनूर से ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया, महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब के तहत काश्तकारों की रहनुमाई की जा रही है कि वो गंदम की काश्त के लिए मतनासब और मुनासिब खादों का इस्तेमाल करें, रिकमेंडेड शरह बीज इस्तेमाल करें, सिफारिश करदा अक़साम इस्तेमाल करें और इसके अलावा सोइंग टाइम जो है उसका
जा रहे हैं उनकी बैलेटिंग हो चुकी है। 10,000 नमैशी प्लाट्स कायम किए जाएंगे सूबा पंजाब में और 20,000 रुपया फी एकड़ माली आनत जो प्लाट कायम किए जाएंगे उनके काश्तकारों को दी जाएगी। कैमरामैन खुरम उस्ताद के साथ फजल जुवेद खान, कोहिनूर न्यूज़, भावलपुर। नवीद नासिर खबर शामिल करें मीरपुर खास से, जहां हारी तहरीक और अवामी तहरीक की जानिब से स्टेशन चौक पर जाकर दराना निजाम के खात्मे और सिंध की जमीनें गरीब काश्तकारों को न मिलने के खिलाफ सिटी प्रेस क्लब मीरपुर खास तक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें तहरीक के रहनुमाओं, वकला, शहरियों और खवातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद जानते हैं रैली में मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुल गफ्फार लुगारी से। जी अब्दुल गफ्फार, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से आपके पास? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिटी प्रेस क्लब मीरपुर खास के सामने, जहाँ सिंध हारी तहरीक और अवामी तहरीक की जानिब से जागीरदार निज़ाम और सिंध की जो 13 लाख ज़मीन है वो गैर मुल्की सरमायादारों को देने के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मजीद आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। तारीख सिंधी हारी तहरीक तरफ़ा कढी है। असांजा बुनियादी मुतालबा ये सिंध में लखे बिहारी बर्मी अफ़गानी रहन था, अञा ताईं उन्हनि खे वापसि कोन मोकिलियो वियो आहे। हिते कंहिं बि क़िस्म जो ऑपरेशन कोन पियो थिए। सिंध जी लखे एकड़ ज़मीननि ते ज़राई इनकलाब जे नाले में कब्ज़ो कयो वियो आहे। इन्हनि ज़मीननि ते बुनियादी तौर ते हिते जे मक़ामी बेज़मीन हारियुनि जो हक़, उहे ज़मीन उन्हनि खे ॾिनियूं वञनि। डिजिटल आदमशुमारी जे हवाले से सिंध जी नस्लकशी कई आहे, आइन ऐं कानून जी तौहीन कई आहे। सिंधियुनि खे पंहिंजी तारीख़ी वतन में हिननि ला अक़लियत में तब्दील करण जी तमामु वॾी साज़िश कई आहे। तहरीक तरफ़ा ही सिंधियारी तहरीक जो हज़ारे भेनरूं इहो ॿुधाइण आयूं आहिनि त सिंध जो 1 एकड़ ज़मीन जो असीं न ॾींदासीं, असीं अफ़गानियुनि खे बर्दाश्त न कंदासीं। मुतालबा आहिनि त अफ़गानियुनि समेत सभिनी धारियुनि खे निकाली ॾिनी वञे। असांजो ॿियो मुतालबो आहे त जागीरदारी सिस्टम ख़तमु करे ज़मीनूं सिंधी हारियुनि में विरायूं वञनि। असांजो इहो मुतालबो आहे त जेके पाणी ते धार आहिनि उहे ख़तमु कया वञनि। असांजो इहो मुतालबो आहे त जिन सिंध जे वसीलनि ते कब्ज़ा आहिनि उहे ख़तमु कया वञनि। सिंध खे मुकमल तौर ते जेको हिननि कब्ज़ो करे रखियो आहे, तबाही जे किनारे ते पहुचायो आहे, उहो ख़तमु कयो वञे। ऐं विफ़ाक़ी हुकूमत तरफ़ां जेका 13 लख एकड़ ज़मीन अरबन खे ॾिनी पई वञे। नासिन खबर शामिल करें खानेवाल से, जहां महकमा एंटी करप्शन मुल्तान की कामयाब कार्रवाई मंजर आम पर आई है। शहरी से नौकरी का झांसा देकर रिश्वत वसूल करने वाले स्कूल टीचर इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। क्या इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे कैसर चौधरी। स्कूल टीचर मोहम्मद इकबाल शहरी से सरकारी नौकरी के नाम पर बाकी 25,000 रुपये वसूल कर रहा था। गिरफ्तार मुलजिम सरकारी नौकरी लगवाने की मद में अब तक 4,80,000 रुपये वसूल कर चुका था। एंटी करप्शन टीम ने मुलजिम से निशान ज़दा नोट बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। खबर शामिल करें घोटकी से, जहां पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी गई। थाना खमड़ा पुलिस ने लावारिस कार से 20 मन पैकेट गुटखा पान पर आग बरामद कर ली है। मुलजिम पुलिस को गश्त पर देखते हुए रास्ता न मिलने पर कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस ननकाना में जारी लोअर क्लास कोर्स के इख्तिताम पर तकरीब का इनेकाद किया गया। 4 माह के लोअर कोर्स की तरबियत हासिल करने वालों में 68 कांस्टेबल्स और 3 लेडी कांस्टेबल शामिल थी। तकरीब में लोअर कोर्स की तरबियत देने वाले टीचर्स और इंस्ट्रक्टर्स को मेहमान खसूसी बनाया गया। DPO ननकाना साद अजीज और SP इन्वेस्टिगेशन गुलाम मुस्तफा गिलानी ने पुलिस अफसरान और जवानों से खिताब किया और दौरान ट्रेनिंग ला पढ़ाने और ट्रेनिंग करवाने वाले इंस्ट्रक्टर्स को तारीफी असनाद तकसीम की। DPO ननकाना पुलिस अफसरान और जवानों से खुल मिल गए और खुशगवार माहौल में गपशप की है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस ननकाना में जारी
لوئر کلاس کورس کے اختتام پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ 4 ماہ کے لوئر کورس کی تربیت حاصل کرنے والوں میں 68 کانسٹیبلز اور 3 لیڈی کانسٹیبلان شامل تھیں۔ تقریب میں لوئر کورس کی تربیت دینے والے ٹیچرز اور انسٹرکٹرز کو مہمان خصوصی بنایا گیا۔ ناصر وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سمندری میں دوسرے اسپورٹس میلے کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں سمندری سمیت 6 تحصیلوں کے پلیئرز 9 مختلف گیمز میں حصہ لے سکیں گے۔ مزید جانتے اپنے نمائندے عبدالحی سباسی کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور ڈپٹی کمشنر فیصل آباد اور اسسٹنٹ کمشنر سمندری سلیمان منشا کی جانب سے سمندری میں سیکنڈ سپورٹس میلے کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس سپورٹس میلہ میں روایتی کھیل کبڈی، فٹ بال، ہاکی سمیت 9 گیمز میں پلیئر حصہ لیں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر سمندری سلیمان منشا اور تحصیل سپورٹس افیسر مشل فاطمہ کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کھیلوں کے فروغ اور کھیلوں کے میدان کی رونقوں کو بحال رکھنے کے لیے سپورٹس میلہ کا انعقاد کر رہی ہے، جس میں 6 تحصیلوں سے پلیئرز حصہ لیں گے۔ سپورٹس میلہ 15 نومبر سے 20 نومبر تک جاری رہے گا۔ پنجاب ایک بڑا کلرفل ایونٹ کروانے جا رہی ہے جو کہ 15 سے 20 نومبر کے درمیان ہوگا، اور 9 گیمیں سمندری میں اور 19 گیمز جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہو رہی ہیں۔ ہمارے یہاں پہ کبڈی، فٹ بال اور کرکٹ وغیرہ کے میچز ہوں گے۔ بیڈمنٹن کی بھی ٹیمیں ہیں ہمارے پاس، تو ہم زیادہ سے زیادہ اس میں کالجز اور اسکول کے بچوں کو جو ہے وہ انکریج کر رہے ہیں کہ وہ اپنی پارٹیسپیشن یقینی بنائیں۔ یہ بہت زبردست قسم کا ایک ایونٹ ہے جو سیکنڈ سپورٹس میلے کے نام سے حکومت پنجاب سی ایم صاحب کی ہدایت پہ ڈی سی اینڈ اے سی کے تعاون کے ساتھ ہمارے پاس ہونے جا رہا ہے۔ اور ناصر خبر شامل کرے چشتیاں سے، جہاں تھانہ سٹی اے ڈویژن پولیس کی بڑی کارروائی منظر عام پر آئی ہے۔ 5 ملزمان کو 17 من بھنگ سمگل کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان مزدار ٹرک پر چھوٹے بچوں سمیت گداگر خواتین کو بٹھا کر ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کر رہے تھے۔ پولیس نے خفیہ اطلاع ملنے پر کارروائی کی، جس میں گداگر خواتین نے تھانے کے باہر دھرنا بھی دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود اپنے نمائندے طاہر الحسن سے۔ جی طاہر، اپڈیٹ کیجیے گا، کیا معاملہ ہے یہ؟ جی بہت شکریہ۔ چشتیاں تھانہ سٹی اے ڈویژن پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ چشتیاں تھانہ سٹی اے ڈویژن پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے گداگروں کے قبضہ سے 17 من بھنگ جو ہے وہ برآمد کر لی ہے۔ ملزمان بھنگ جو ہے لاہور سے دوسرے شہر لے کر جا رہے تھے۔ پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے 5 ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا اور 17 من بھنگ جو ہے وہ ان کے قبضہ سے برآمد کر لیے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ گداگر جو ہے وہ بھنگ جو ہے مختلف علاقوں میں بڑے عرصہ دراز سے فروخت کرتے تھے اور بڑی چلاکی کے ساتھ یہ جو ہے وہ لے کر جا رہے تھے، اور یہ مزدہ ٹرک میں یہ لوڈ کر کے اور اوپر گداگر خواتین اور چھوٹے بچوں کو اس میں لوڈ کر کے وہ لے کر بڑی چلاکی کے ساتھ دوسرے شہروں میں منتقل کر رہے تھے۔ جب خفیہ اطلاع پر کارروائی کی گئی تو ان کے قبضہ سے 17 من بھنگ جو ہے وہ برآمد کی گئی اور مقدمہ درج کر کے مزید ان کے خلاف جو ہے وہ تفتیش کی جا رہی ہے، اور امید ہے کہ ان کے قبضہ سے اور بھی بھنگ جو ہے وہ برآمد کی جائے گی۔ اور مزید اس حوالے سے چشتیاں پولیس کا کہنا ہے کہ آئی جی پنجاب، ڈی پی او بہاول نگر اور ڈی ایس پی گول حسن چشتیاں کی سربراہی میں اسی طرح جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ جی ٹھیک ہے، جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ طاہر الحسن جو ہے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے ہمیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ خبر شامل کرے خوشاب سے، جہاں بکری چوری کرتے ہوئے ملزموں پر شہریوں کی جانب سے تشدد کا ڈی پی او خوشاب نے نوٹس لے لیا ہے۔ محمد سہیل اور وقار عباس شہریوں نے تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ ڈی پی او خوشاب توقیر انجم نے سوشل میڈیا پر چلنے والی خبر کا نوٹس لیتے ہوئے واقعے میں ملوث ملزموں کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی شخص کو قانون ہاتھ میں لینے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ خبر شامل کریں ناروا سے، جہاں مرکزی جمعیت اہل حدیث قیادت نے کہا کہ مصر اور بحرین کی جماعت کے ذمہ داران کے تعاون سے رفح بارڈر کے ذریعے غزہ کے مسلمانوں میں امداد پہنچانے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اب تک لاکھوں روپے کے حساب سے ان کی امداد کی جا چکی ہے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی جانی اور مالی امداد ضرور کریں۔
खबर शामिल करेंगे तहसील अलीपुर से, जहां पर हेड पंचन पेट्रोलिंग पुलिस ने नवंबर कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। इंचार्ज चौकी सलीम लाशानी ने रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि मुख्तलिफ मुल्जिमान के खिलाफ 4 मकामात दर्ज किए गए। दौरान नाकाबंदी 2 इश्तिहारी मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। स्लो मूविंग गाड़ियों को 48 रिफ्लेक्टर लगाए गए, जबकि 68 गैर कानूनी गाड़ियों को बंद करके 470 चालान किए गए। उन्होंने कहा कि हेड पंचन पेट्रोलिंग पोस्ट पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की चेकिंग का सख्त अमल जारी है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि तहसील अलीपुर से, जहां पर हेड पंचन पेट्रोलिंग पुलिस ने नवंबर कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। इंचार्ज चौकी सलीम लाशारी ने रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि मुख्तलिफ मुल्जिमान के खिलाफ 4 मकामात दर्ज किए गए हैं। दौरान नाकाबंदी 2 इश्तिहारी मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। स्लो मूविंग गाड़ियों को 48 रिफ्लेक्टर लगाए गए, जबकि 68 गैर कानूनी गाड़ियों को बंद करके 470 चालान किए गए। उन्होंने कहा कि हेड पंचन पेट्रोलिंग पोस्ट पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की चेकिंग का सख्त अमल जारी है। नाज़रीन, खबर शामिल करें खानका डोगरा से, जहां पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से शराब कशीदा करने वाले मुलजिम को चालू भट्टी समेत रंगे हाथों पकड़ा गया। खानका डोगरा के नवाही गांव जंडवाली में मुखबर की इतला पर पुलिस ने छापा मारा, जहां जंडवाली के एक वीरान हवेली में मियां रहीमा का रिहायशी शम्स उर्फ टुंडा मुस्लिम शेख मौका पर शराब कशीदा कर रहा था, जिसे पुलिस ने 18 लीटर शराब समेत रंगे हाथों गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया। खबर शामिल करें ओकाड़ा से, जहां यूनिवर्सिटी के तलबा के दरमियान झगड़ा हो गया। फायर लगने से एक तालिब इल्म शदीद जख्मी हो गया। जख्मी तालिब इल्म को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। खबर शामिल करें मंडी बहाउद्दीन से, जहां इंसानियत फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम दूसरा सालाना फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में सैकड़ों मरीजों का मुफ्त मुआयना और अद्वियात दी गई। मेडिकल कैंप मोहम्मद रियाज तारड़, मंजूर अहमद तारड़ की तरफ से लगाया गया। फ्री मेडिकल कैंप में माहिर डॉक्टर्स की टीम ने सैकड़ों मरीजों के मैदा, जिगर, शुगर, कोलेस्ट्रोल और माहिर खवातीन के लिए अमराज नुस्खा के मुफ्त टेस्ट किए और अद्वियात भी फराहम की। नाज़रीन, खबर शामिल करें, आपको बताएं कि थाना कंगनपुर के नवाही गांव में पुलिस थाना कंगनपुर ने गरीब मेहनत कश के घर पर कब्जा ग्रुप से मिलकर मेहनत कश के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करके उसे हवालात में बंद कर दिया और उसके घर पर कब्जा जमा लिया है। घर की इस हवाले से मुतासरा खवातीन ने इल्जाम लगाया है कि कसूर पुलिस के साथ लीड फोर्स के नौजवान भी कब्जे में शामिल थे। घर में लाखों रुपए का कीमती सामान तोड़ फोड़ कर सड़क पर फेंक दिया गया। खवातीन और बच्चों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया है। मुतासरा खवातीन ने धमकी दी है कि अगर आईजी पंजाब ने उसका नोटिस लिया तो वो इज्तिमाई खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाएंगी। 17 साल ते अज नवा ही काम वेख्या जिहड़ा अज SHO कराई बैठा साडे पिंड च। इस पिंड दा मैं पत्तीदार हाँ ते 70 साल मेरी उम्र है ते ये काम अज नवा ही वेख्या है जिहड़ा काम वो कराई बैठा है SHO साहब शेख आजाद साहब। उन्होंने गरीबां नूं बाहर कड्ढी बैठा है, निक्के निक्के उन्हां दे बाल ने, वो बाहर सड़क ते बैठे ने ते वो आप अंदर पुलिस लाए ते अंदर पुलिस भी ते वो जेड़े कब्जा ग्रुप है उन्होंने भी अंदर पाई बैठा है। सानू इंसाफ जी चाहिए से और कोई नहीं। केस बच्चे मर्जी पूछ लवो। 5 डाले थे अजे पुलिस ते खड़ने से धक्के न मार मार ते सानू काट दिता ने कुट मार ते बड़े रुपये उन्हां को खाते ते सानू अज साडा कोई भी नहीं है। मेरे जाना दियां ने 8-9 बच्चे ने। मोहम्मद अकरम मेरा नाम है तो मैं एडवोकेट हाँ, इस पिंड का पत्तीदार भी हाँ। 52-53 साल मेरी उम्र हो गई तो जी पुलिस कब्जा करवाई बैठी है बहुत ज्यादा है। जेडे जमीन जिन्होंने कब्जा करवाई बैठी कतई तौर पर उन्होंने कोई तलक वास्ता नहीं है। इतने 50 साल तो काबल ने इधे शामिल हट जगह है। 90% लोगों को पिंड च पूछा जाए वो भी आखते इन्हों का कोई तलक वास्ता इस जगह नाल नहीं। पुलिस नूं पता नहीं की मजबूरी है, दूजे बंदे परेशान होने पिंड वाले मैं पुलिस दूजे पिंड में अफगानिया तरह इतों छड़ा दे, समान समूह चाह दे, तुसीं इतों निकल जाओ। कब्जा पता नहीं SHO शेख करना है
ਸਾਡੀ ਜੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਖਾ ਲੈਣੇ, ਖਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਖਾ ਤੇ ਚਾਰ ਦੁਆਰੀ ਚਾਹ ਤੇ ऐसे तो ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਤੇ ਬਾਹਰ। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, बड़ी खबर आपको दें कि लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया है। शहर से आलूदगी का खात्मा ना हो सका, शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। तिबी माहिरीन की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली दूसरे नंबर पर है। कानून नाफिज करने वाले इदारे आलूदगी कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं, इस हवाले से आपको अपडेट करते चले कि लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया है। शहर से आलूदगी का खात्मा ना हो सका, शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। तिबी माहिरीन की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली दूसरे नंबर पर है। आपको अपडेट कर रहे हैं लाहौर के हवाले से, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन चुका है। शहर से आलूदगी का खात्मा ना हो सका है, शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे उस्मान मुगल से। जी उस्मान, बताइएगा, महकमे माहौलियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर है, इस हवाले से क्या इक़दाम अपनानी चाहिए? देखिए जी, लाहौर में स्मोग और आलूदा फिजा के बादलों से आवाम परेशान है। गाड़ियों, फैक्ट्रियों की चिमनियों और ईंटों के भट्टों से निकलने वाले धुएं ने इंसानी जिंदगियों को बुरी तरह मुतासर कर रखा है। कमिश्नर लाहौर के आर्डरों के बावजूद तमीराती काम ना रुक सके और धुआं छोड़ने, डस्ट उड़ाते ट्रकों का सैलाब शहर लाहौर में दंदनाता फिर रहा है। यूं महसूस हो रहा है स्मोग या धुंध के बायस हद निगाह कम होने की वजह से ट्रैफिक पुलिस, मोटरवे पुलिस, जिला इंतजामिया, महकमा माहौलियात, व्हीकल के स्क्वाड की हद निगाह भी कम हो गई है, जो इनके खिलाफ कार्रवाई करने से कासिर हैं। अवाम का कमिश्नर लाहौर से अपील करते हुए कहना था कि कमिश्नर लाहौर को कभी अपने दफ्तर से चंद कदम दूर सगिया पुल पर आकर खुद नजारा देख सकते हैं कि मट्टी से लदे हुए ट्रक ट्राले लाहौर के शहरियों को किस तरह मुंह चढ़ाते फिर रहे हैं। स्मोक की सूरत हाल को देखते हुए निगरान वजीर आला पंजाब ने आला अदलिया के हुक्म पर स्मोक एमरजेंसी नाफिज तो कर दी, जिसका जिलाई इंतजामिया और दीगर महकमों पर कोई असर नहीं हुआ, जो सिर्फ फोटो सेशन की हद तक महदूद होकर रह गया, जिसकी वजह से पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में भी स्मोक से बदतर खौफनाक सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। अगर आप लाहौर से जड़ावाला रोड, शेखुपुरा से रोड और नारोवाल रोड की इतराफ और इसी तरह शेखुपुरा से फैसलाबाद के इतराफ सफर करें तो वाज़े तौर पर खेतों में आग लगने का अमल अरूज पर देख सकते हैं, लेकिन स्मोक कंट्रोल करने वाले महकमे सिर्फ कागजों की कार्रवाई करके सब ओके की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। कोहे नूर न्यूज की टीम ने महकमा ज़राअत, पंजाब पुलिस, महकमा माहौलियात और जिला इंतजामिया वगैरह की गफलत से अरबाब अख्तियार को वक्तन फवक्तन आगाह किया, लेकिन इन क्रैप्टो ना एहलकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। ठीक है उस्मान, ये भी बताइएगा, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि स्मोक की वजह से भी है, और दूसरा आपको नहीं लगता कि जो हैवी ट्रैफिक की आमदोरफ्त है, लोडर ट्रक्स हैं और जो बड़े बड़े ट्राले हैं, वो रात का पहले इस तरह से होता था कि वो रात 12 बजे के बाद एंट्रेंस हो उनकी, लेकिन अब जो है वो दंदनाते फिर रहे हैं दिन भर, इसी तरह से हैवी ट्रैफिक का आना जाना है। इस हवाले से भी जो है वो माहौलियात में काफी आलूदगी आ चुकी है, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं आपको इस पर मजीद बताता चलूँ को पहले तो जो टाइमिंग थी वो तकरीबन 11 बजे कर दी गई थी हैवी व्हीकल की, तो अब देखने में यही आ रहा है कि जो ट्राले और ट्रक हैं और जो ट्रालियां उसके ऊपर मट्टी और रेत जिसको बगैर किसी डंप पे वो जो है ना लाहौर में एंट्री दे रहे हैं। बाबू साहब इंटरचेंज पर अगर खड़े हो जाए रावी टोल प्लाजा पर तो आपको बेशुमार इसी तरह की मट्टी वाले ट्राले ये नजर आएंगे, जो आलूदगी तो फैला ही रहे हैं, लेकिन जो इनके ऊपर वो रेत इससे ऊपर रखी होती है वो भी आंखों में और गले में इसी तरह से जा रही होती है, जिसकी वजह से लाहौर जो है ना वो आलूदगी में पहले नंबर पर आ रहा है। और मजीद मैं आपको बताता चलूं कि जो ही रात के 11 बजते हैं और जितनी भी बड़ी ट्रैफिक है वो लाहौर में जैसे ही एंट्री लेती है तो उसके अंदर तकरीबन बाइक वाले और छोटी मोटी व्हीकल वाले उनका गुजरना जो है ना वो मुहाल हो जाता है,
ये सबसे बड़ी वजह देखने में नजर आ रही है। जी जी बिल्कुल ठीक है। रिपोर्टर उस्मान मुगल तमाम तर तफसीलात से हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नाज़रीन आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि खिदमत ग्रुप के सदर बाबर महमूद की क़यादत में हाल रोड के ताजरों का मसलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती करते हुए पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा जारी है। सैकड़ों ताजरों ने इस हवाले से शिरकत की है। फलस्तीनियों पर किए जाने वाले मसालिम के शदीद अल्फाज में मुसम्मत की है। इस वक्त अली फारूक खिदमत ग्रुप के सदर बाबर महमूद के हमरा मौजूद हैं। चलिए बताइएगा क्या कहना है बाबर का। जी मैं इस टाइम बिल्कुल खड़ा हूँ हाल रोड पर, जहाँ पे खिदमत ग्रुप की तरफ से फ़लस्तीनियों के मजलूम जो फ़लस्तीनी उनके लिए आवाज़ उठाई गई है। बाबर महमूद हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गज़ा के मुसलमानों के लिए जिन पे जुल्म किया जा रहा है और कफ़ार की तरफ से किया जा रहा है, यहूदियों की तरफ से किया जा रहा है, अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है और यूरोपियन की पूरी सपोर्ट है, लेकिन बदकिस्मती के साथ इस वक्त गज़ा और फ़लस्तीनियों के साथ दुनिया का कोई मुसलमान मुल्क उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं। सिर्फ खौफ है तो इस वक्त उनको अल्लाह का खौफ नहीं है। मुसलमान ममालिक को इस वक्त अल्लाह का खौफ नहीं है। वो अमेरिका से डर रहे हैं, वो यहूदियों से डर रहे हैं, वो यूरोप से डर रहे हैं। लेकिन हम सलाम पेश करते हैं गज़ा की उन माओं को, उन जवानों को जिन्होंने शहादत के लिए अपने आप को पेश किया, और वो अगर ख़ुद शहादतें ले रहे हैं तो इसराइल को भी उसका मज़ा दे रहे हैं। इसराइल को इस वक्त दुनिया भर में हम जलील होता देख रहे हैं। पूरी दुनिया में लानतान की जा रही है यहूदियों के ऊपर। तो इंशाअल्लाह ताला हम पूरी उम्मीद है, कोई उनकी मदद करे ना करे, लेकिन अल्लाह उनकी मदद ज़रूर करेगा गज़ा के मुसलमानों को। और उनकी बहादुरी और जुर्रत को भी सलाम करते हैं कि जब चारों तरफ से बमबारी हो रही है तो आपने देखा होगा मुख्तलिफ वीडियो में, वहीं पर इमारतें गिरी हैं और वहीं पर वो मौजूद हैं। जैसे धूल बैठती है दोबारा उसी जगहों पर आके लाशें भी उठाते हैं, मलबा भी हटाते हैं, हॉस्पिटलों में भी लेके जाते हैं, कंधों पे भी उठा के लेके जाते हैं। बच्चों के अलग किए हुए दर भी वो इकट्ठे करते हैं, यहाँ तक कि कपड़े में लपेटे हुए बच्चे भी देखे गए हैं कि बाप अपने बच्चों को इकट्ठा कर रहा है। तो लेकिन मुसलमानों की गैरत इस वक्त नहीं जाग रही। सारे मुसलमान हुक्मरान इस वक्त सिर्फ बुज़दिलों की तरह अपने ड्राइंग रूमों में बैठे हैं। उनकी ज़रूरत ही नहीं है कि कोई ऐसा मैसेज दे सके। और बदकिस्मती के साथ 42 मुल्कों की फ़ौज सऊदी अरब ने तैयार की थी और दुनिया जहां का असला भी ख़रीदा था। 70 लाख मुसलमान ममालिक की फ़ौज है और वो यहूदी जो 80 लाख है पूरे डंके की चोट में मुसलमानों को चैलेंज कर रहे हैं, उनके सामने मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं। लेकिन किसी में हिम्मत और जुर्रत नहीं, ये मिन्नतें कर रहे हैं, ये वास्ते डाल रहे हैं। सिर्फ इनकी इतनी औकात है कि जंग बंदी कर दे, जंग बंदी कर दे। अगर ये अभी जुर्रत करें ये 4 ममालिक भी, अगर पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, सऊदी अरब, शाम, मिस्र, अभी अगर ये उठ खड़े हो जाए, गैरत खा लें, तो मैं देखूंगा ये जो इस अमेरिका का बेरा वहाँ पे आके खड़ा है वो कितनी देर वहाँ पे खड़ा रहता है। जज्बा था ये बाबर महमूद और ये हाल रोड के ताजरों का, और इन्होंने मुकम्मल तौर पर इज़हार यकजहती किया है। वहीं दूसरी जानिब लेस्को ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स की सदादे बिजली चोरी मुहिम में शानदार कारकर्दगी मंजर-ए-आम पर आई है। 8 की बजाय 16 या 18 घंटे बगैर छुट्टी के काम करके तसल्ली बख्श अहदाफ हासिल कर लिए हैं। लेस्को मुलाजमिन दिन रात काम की वजह से शदीद ज़हनी और एसाबी तनाव का शिकार हो चुके हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सीनियर रिपोर्टर साजिद काज़मी से, जो कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जी साजिद, अपडेट कीजिएगा कि लेस्को मुलाजमिन शदीद ज़हनी और एसाबी तनाव का शिकार हो चुके हैं, इस हवाले से बताइएगा। सीईओ लेस्को शाहिद हैदर की सरबराही में 58 रोज से जारी मुहिम के नतीजे ये नताइज बमुताबिक तर्जुमान लेस्को राय मसूद खर्ल के ऐसे हैं कि मजमूई तौर पर 23,713 कनेक्शंस बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए। 23,474 कनेक्शंस के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्तें जमा करवाई गई। 22,625 दरखास्तें रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। बिजली चोरों को अब तक 4,52,12,509 यूनिट चार्ज किए गए हैं। चार्ज किए गए यूनिट्स के मालियत 1,91,61,24,205 रुपए हैं। ये पुरकशिश अदादो शुमार
और शानदार कारकर्दगी लेस्को के मेहनती अफसरों और जफाकश अहलकारों की शब रोज मेहनत का नतीजा है, जिन्होंने पूरा हफ्ता बिला नागा 24 में से 18 घंटे काम किया और जिस्मानी और जहनी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। जबकि इतना काम लेना गैर कानूनी, गैर अखलाकी और गैर इंसानी है, जो जुल्म और बेइंसाफी के जुमरे में आता है, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी पावर मिनिस्टर और पावर सेक्रेटरी पर आयद होती है। जी ठीक है सर, ये भी बताइएगा इस हवाले से अगर जो है वो एक्स्ट्रा काम लिया जा रहा है जिसकी वजह से मुलाजमीन ज़हनी और एसाबी तनाव का भी शिकार हो रहे हैं, तो क्या उनको इस हवाले से कुछ एक्स्ट्रा जो है इंक्रीमेंट या बोनस पे किया जाएगा? इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी अभी तो हुरो गिलमान के वादे हैं, अमली तौर पर ऐसा कुछ नहीं है। अमली तौर पर इस वक्त IMF की गुलाम हुक्मरान निगरान हुकूमत में सरकारी मुलाजमों से जालिमाना और बेरहमाना रवैया अख्तियार किए हुए काम ले रही है, जो किसी भी नुक्ता नजर से इंसानियत के जुमरे में नहीं आता। ठीक है सर, ये बताइएगा कि आला हुकाम की जानिब से कुछ इस हवाले से नोटिस दिया जाएगा, ये जो बहिमाना और जालिमाना इकदाम कर रहे हैं लेस्को वाले? जी कोहेनूर के ही नुमाइंदगान से मिलकर लेबर ने और ऑफिसर्स ने इन हकायक से आगाह किया है कि हमसे काम लिया जा रहा है 8 की बजाय 16 घंटे, 18 घंटे, और हफ्ते में कोई छुट्टी नहीं दी जा रही, और नौकरी से बर्खास्तगी, दूर दराज ट्रांसफर और मुअत्तली की धमकियां अलहदा हैं। यही वजह है कि महंगाई के इस पर अशोक दौर में अपनी नौकरी बचाने के लिए बेरहम और जालिम हुक्मरानों की बेरहमी का शिकार है मुलाजिम इस वक्त। ठीक है, मुलाजिम इस वक्त जो है वो बेरहमी और जुल्म का शिकार है। इस पर सीनियर रिपोर्टर साजिद कासमी तफसीलन हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से DPO शेखुपुरा जाहिद नवाज मरवत और उनकी टीम की मुलाकात हुई। जाहिद नवाज मरवत ने पुलिस की कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग दी। मजीद तफसीलात के मुताबिक शेखुपुरा पुलिस ने रवां बरस के दौरान डकैतियों और मुजरिमात से 36 करोड़ 3,62,000 रुपए का माली मसरूका बरामद करके असल मालिकान के हवाले किया। नाजायज असलहे के खिलाफ कार्रवाई में 1,787 मुकदमा दर्ज किए गए। मुलजिमान के कब्जे से 112 क्लाशनकोफ, 116 बंदूकें, 129 राइफल्स, 1,430 पिस्टल और 8,702 गोलियां और कारतूस बरामद कर लिए गए। शेखुपुरा पुलिस ने 13 ब्लाइंड मर्डर समेत मजमूई तौर पर कत्ल के 42 मुकदमात के मुलजिमान को गिरफ्तार करके हवालात में भेज दिया है। नाज़रीन खबर शामिल करें लाहौर से, जहां दाता गंजबख्श टाउन के मौतल बिल्डिंग इंस्पेक्टर ने पूरे जोन को यकमाल बना लिया है। अब्दाली चौक की गैर कानूनी तामीर को मिसमार करके दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया है। ज़राए के मुताबिक वहीदुद्दीन बिल्डिंग इंस्पेक्टर गैर कानूनी प्लाजे की इंतजामिया को दोबारा तामीर करने की इजाजत देने लगा। 50 लाख रुपए रिश्वत वसूली किए जाने का भी इंकशाफ है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे जुनेद अशरफ से। जी जुनेद, बताइएगा कि 50 लाख रुपए रिश्वत वसूली की जा रही है, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए शहर लाहौर की बात करें तो शहर लाहौर के दाता गंजबख्श टाउन में जो है मोतल बिल्डिंग इंस्पेक्टर ने पूरे जोन को यरगमाल बना लिया है। अब्दाली चौक पर वाक़े बिल्डिंग को जो है बाकायदा तौर पर गैर कानूनी तामीरात जारी थी, उसको बाकायदा तौर पर CO साहब ने नोटिस लेते हुए उस पर मसमारी की थी, जबकि उसके बरक्स जो है बिल्डिंग इंस्पेक्टर वहीदुद्दीन ने गैर कानूनी प्लाजा की इंतजामिया को दोबारा तामीर करने की इजाजत दी है। ज़राए के मुताबिक 50 लाख रुपए की रिश्वत वसूली किए जाने का इंकशाफ हुआ है। प्लाजा इंतजामिया का कहना है कि हमें हर हाल में प्लाजा की दोबारा तमीर मुकम्मल चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर समेत किसी भी आला हुकाम की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। प्लाजा इंतजामिया ने बिल्डिंग इंस्पेक्टर और खातून ZOP महविश नेम को अल्टीमेटम दिया है। कमिश्नर लाहौर की हदायत और गैर कानूनी तामीरात की आड़ में रिश्वत वसूली जैसे संगीन करप्शन के इल्जाम के तहत मुअत्तल होने वाले बिल्डिंग इंस्पेक्टर वहीदुद्दीन ने दाता गंजबख्श टाउन में मुकम्मल तौर पर डेरे जमाए हुए हैं। ज़राए के मुताबिक खातून ZOP महविश नईम को तमाम गैर कानूनी तामीरात से रिश्वत वसूली के ठेकर लेकर देने लगा है, जबकि अब्दाली चौक पर वाक़े 5 मंजिला तामीर को मुकम्मल करने के लिए वहीदुद्दीन बिल्डिंग इंस्पेक्टर के जरिए मुबैना तौर पर 50 लाख रुपए रिश्वत वसूल की गई है।
जबकि इसका नक्शा मनसूखी से रोकने और ताखीरी हरबों से मजीद कार्रवाई न करने की हामी खातून ZOP महविश नईम भर चुकी हैं। आपको बताते चले वहीदुद्दीन बिल्डिंग इंस्पेक्टर जैसे कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा के हुक्म पर दौरान इंक्वायरी इल्जाम साबित होने पर मुअत्तल किया गया था, जबकि इसके खिलाफ 32 से जायद गैर कानूनी तामीरात पर इंक्वायरी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड और DG इंक्वायरी सरदार नसीर के पास जेर समाअत है। वो मुअत्तली के बाद एक रोज भी दाता गंजबख्श टाउन से बाहर नहीं निकला और कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा के अहकाम के बरक्स दोबारा दाता गंजबख्श टाउन में तैनात होकर काम करने में मसरूफ़ अमल है और पूरे दाता गंजबख्श टाउन को मुकम्मल तौर पर यरगमाल बना चुका है। जी ठीक है जुनैद, ये बताइएगा कि रिश्वत वसूली की रोकथाम के लिए क्या इकदाम जरूरी हैं, इस हवाले से अपडेट करें। जी बिल्कुल, अगर रिश्वत के हवाले से बात कर ले और रोकथाम के हवाले से बात की जाए तो इस हवाले से बाकायदा तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर और दूसरी जगहों पर इसके हवाले से सख्त कवानीन बनाए गए हैं और जहाँ कहीं भी रिश्वत वसूली के इंकशाफ होते हैं उसके लिए बाकायदा तौर पर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और हमारे महकमा बल्दियात के इदारे उसकी तहकीकात करते हैं और साथ ही साथ एंटी करप्शन में जो ज़ेरे इल्तवा केसेस हैं अगर उन पर फोकस किया जाए, उनको देखा जाए तो बहुत से मामला इसमें है जिसमें बाकायदा तौर पर रिश्वत वसूल की गई थी और उसके केसेस में मजीद जो है इस करप्शन का खात्मा होगा। जी ठीक है, इस हवाले से करप्शन का खात्मा होगा। रिपोर्टर जुनैद अशरफ तमाम तर तफसीलात से हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जामिया गुजरात सब कैंपस मंडी बहाउद्दीन में तलबा सेमिनार से खिताब करते हुए साबिक सेक्रेटरी पंजाब और दीनी स्कॉलर मोहम्मद अमीन चौधरी ने कहा कि तलबा अल्लाह करीम और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और तालीमात की रोशनी में अपनी जिंदगी की जोहद और मंजिल का तयन करे। तलबा की अमली तरबियत और रहनुमाई के लिए करियर प्लानिंग, तरजीहात और अहदाफ के मौजू पर मुनक्किदा सेमिनार से खिताब करते हुए मोहम्मद अमीन चौधरी का कहना था कि तलबा सीरत तैयबा के असूलों पर जिंदगी सवार करते हुए अमली जिंदगी में कामयाबी की मनासिल तय करें। नासिर खबर शामिल करें पन्नू आकिल से, जहां यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से सखर के शहीद सहाफी जान मोहम्मद महर के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज किया गया। सहाफियों ने शहर का मेन चौक बंद कर दिया और शदीद एहतजाज किया। उनका कहना था कि शहीद सहाफी जान मोहम्मद महर को सखर के मसरूफ तरीन रोड पर शहीद करके मुलजिम को आसानी से निगल गए हैं। 84 दिन गुजरने के बावजूद सखर पुलिस अब तक कातिल गिरफ्तार नहीं कर पाई। दूसरी जानिब DSP जतोई मोहम्मद बिलाल खालिद SHO थाना जतोई की जेर निगरानी हसनैन खान सब इंस्पेक्टर की बड़ी कार्रवाई मंजर-ए-आम पर आई। डकैत गैंग को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया गया। सब इंस्पेक्टर हसनैन खान ने टीम के हमरा बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस गिदारा गैंग के सरगना मोहम्मद नवाज गिदारा, मोहम्मद आसम वगैरह को गिरफ्तार किया, जिनसे 3 अदद मोटरसाइकिल और दीगर माल मसरूका बरामद कर लिया गया। नासिर खबर शामिल करे बन्नू से, जहां मुसाफती इलाकों में गंदम की काश का सीजन शुरू हो गया है। किसानों का कहना है कि तवील अरसे के बाद इस बार शानदार फसल की तवक्को है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि बन्नू के मुसाफती इलाकों में गंदम की काश का सीजन शुरू हो चुका है। किसानों का कहना है कि तवील अरसे के बाद इस बार शानदार फसल की तवक्को है। नहर मरवत किनाल में 22 साल बाद पानी आने से बंजर जमीनें एक दफा फिर आबाद हो गई हैं। थाना लुडन की हदूद में 62 KB और 63 KB के दरमियान चोर रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए सुख प्यास नहर के पलर तोड़कर सरिया ले उड़े हैं। थाना लुडन की हदूद में 62 KB में चोरी की अनोखी वारदात हुई है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि थाना लुडन की हदूद में 62 KB और 63 KB के दरमियान चोर रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए सुख प्यास नहर के पिलर तोड़कर सरिया ले उड़े हैं। थाना लुडन की हदूद में 62 KB में चोरी की अनोखी वारदात हुई। चोर रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए पुल का सरिया चोरी करके
ले गए, जिस पर मुकामी शहरियों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये इलाका नशेइयों की आमाज का बन चुका है। सादकाबाद में कच्चे के डाकू एक बार फिर बेलगाम हो चुके हैं। वहां पर आए तमाम की वारदातों में इजाफा हुआ। थाना भूम की हदूद से अजमल नामी इंडस अस्पताल के मुलाजिम को अगवा कर लिया गया। डाकू मोफी को अगवा करके कच्चे ले गए। मोफी का मोटरसाइकिल कमात की फसल से बरामद हुआ है। आपको बता रहे हैं सादकाबाद से, जहां कच्चे के डाकू एक बार फिर बेलगाम हो चुके हैं। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज।